नमस्कार। किर्गिज़ रिपब्लिक में अध्ययनरत सभी भारतीय छात्रों एवं छात्र समुदाय को एम्बेसी एवं राजदूतावास परिवार की ओर से नववर्ष 2022 की शुभ मंगल कामनाएँ एवं सीजन्स ग्रीटिंग्स। As year 2021 draws to a close, most of you have returned to the college campuses. The year 2020, prior to that, and this year has been full of upheavals. And now we are happy and glad that the academic schedules are back to normal. The classes have restarted. And on this occasion, as we enter New Year 2022, I wish you, your friends, and your families safety, peace, health, and happy studies for 2022. I am recording this message to all Indian students in Kyrgyz Republic with a hope, wish, and best wishes to pursue excellence, success, and in materializing your dreams in life. We are aware that all of you invest a great deal of effort and a vital lifetime of youth to realize your dreams. We are aware that your medical educations in Kyrgyz medical institutions are a significant part in making realize that. I hope the coming year 2022 will be stable, healthy, joyous, and peaceful for all of you to pursue your life's dreams in Kyrgyz Republic. I also want to share with you on this occasion the feelings and sentiments of us on my own behalf, the embassy family, and the large Indian family that all of you are members of in the Kyrgyz Republic. It is a joint venture. It is a collective endeavor of all of us, and together we have done much. And at this juncture, I am hopeful and confident that the way past 3 years we have seen improvement in your performance, in your commitment, and most importantly, in your resolve, that we would be able to make every coming year better and excellent than the previous one. I especially want to recognize on this occasion the good effort put in by our students in Osh, Jalalabad, Ishikul campus, Kant, and in Bishkek in bringing excellence in your pursuits and in bringing a good name to the country. साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आप हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं किर्गिज़ रिपब्लिक में। आपके व्यक्तित्व, व्यवहार एवं कंडक्ट से एक किर्गिज़ आज इंडिया को देखता है और भारतवर्ष भी आपकी निगाहों से किर्गिज़ रिपब्लिक को देखता है। आज इस मौके पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर ये ब्रांड इंडिया, जो एक हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, जिसकी हमको इज़्ज़त, रिकग्निशन एंड बेनिफिट, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलता है, हम उसको बनाएं, हम उसमें और सुदृढ़ता और सुघड़ता लाएं। ध्यान रहे, there is an appreciation for us here and in the world by virtue of the fact that we are Indians. We are known to be industrious. We are known to be possessed with certain mathematical brains, qualities. Our education performance is rated world over, and you are a representative of that community. तो मेरा आपसे ये अनुमान भी रहेगा और आपसे एक ये संभावना भी रहेगी, होप रहेगी कि आप इस उम्मीद पर हमारी खरी उतरेंगे और
हमारी राष्ट्रीय आइडेंटिटी को, पहचान को और परिपक्व और बेहतर बनाएंगे। मैं आप सबको आज इस माध्यम से फिर से एक और बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो किर्गिज़ नेशनल स्टेट लैंग्वेजेस कमीशन के साथ हमारे भारतीय छात्रों ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किर्गिज़ कल्चर, उसके कॉस्ट्यूम्स, फोक म्यूज़िक, सॉन्ग एंड डांस का नेशनल बैले थिएटर में जो परफॉर्मेंस किया, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत और बहुत ही मैच्योर व्यक्तित्व, नेशनल कैरेक्टर का एक सिंबलाइजेशन है कि जब दो कल्चर और सिविलाइजेशन आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, उसमें गिव एंड टेक होता है, म्यूचुअल एप्रिसिएशन होता है। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी who participated in that venture. Not only did they travel from far off campuses of the oceans of Allahabad, but they also won many awards and prizes. आप इस कल्चरल संवाद को बनाए रखें और हमारी कल्चरल एक्सलेंस को किर्गिज़ रिपब्लिक में और किर्गिज़ समाज में इसी तरह से इसका प्रदर्शन करते रहें। आज इस मौके पे एक और संदर्भ जो मैं आप सबके साथ छूना चाहूँगा वो ये दैट मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ अ फ्रेश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस regarding 54 months of mandatory courses at the Kyrgyz medical institutions, followed by 1 year's mandatory internship, to be followed by 1 year's of mandatory internship in India. You are perhaps also aware that the MCI guidelines now require the Kyrgyz medical institutions to follow the syllabus at par with Indian medical colleges, institutions and universities. दो ये बात सही है कि ये गाइडलाइंस रेट्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये केवल आने वाले नए छात्रों पर लागू होंगी, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे आने वाले समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी, जनरेशन, द नेक्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेयर व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि आपकी तरह 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद जब आने वाले छात्र क्वालिफायर एग्ज़ाम देने लगेंगे, उस समय ना मैं यहाँ पर रहूँगा ना आप रहेंगे, लेकिन एक कठिनाई के दौर से वो गुज़र सकते हैं। हम सब की ये एक ज़िम्मेवारी बनती है कि हम इन गाइडलाइन से और किर्गिज़ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस उसकी कंप्लायंस कर पा रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी लें और इसकी जानकारी हमारे भविष्य के आने वाले प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका नववर्ष, हॉलीडेज़, सेलिब्रेशंस मंगलमय रहें, स्वस्थ रहें, हमारी ये कामना है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, आने वाले ओमिक्रॉन वायरस और पैंडेमिक का भी ध्यान रखें कि कहीं ये बात सेलिब्रेशंस में हमारे जेहन से न उतर जाए। इसीलिए आप अपने सोशल कम्युनिटी पॉड में बने रहें। डू नॉट लेट योर गार्ड्स डाउन बिकॉज देयर कुड बी चैलेंजेस अहेड। इन शब्दों के साथ आपके भविष्य की मंगलमय कामना करते हुए मैं आपसे फिर अनुमति लूँगा और नव वर्ष में आपसे फिर एक बार जुड़ूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।